کہ جہاں خدا کا کلام ہوتا ہے وہاں ذاتی ہے. برکت دو ایک دوسرے کو, خدا تجھے برکت, کیونکہ زبان لکھا ہے کلام میں زندگی اور موت زبان کے ہاتھ میں ہے. جب ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ کلام یہ کہتا ہے. ہم نے ابھی جو یہ پیسج پڑھا ہے, کون ہے جو کہ دکھ میں خوش ہوتا ہے؟ مشکل ہے, مگر خدا کے لوگ تو کہتے ہیں نا, رسول سے کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ ہم نے مصیبت اٹھائی, دکھ اٹھایا. مگر میرے بھی جو بچوں, واقعی جب انسان جو آتا ہے نا, جب کوئی مصیبت آتی ہے نا, پریشانی ہوتی ہے, تو پھر ہی وہ خدا کے قریب کرتا ہے, نہیں تو نہیں, بڑا مشکل ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا, بچوں بلیس یو, بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ آئے ہیں. تالی بجاؤ انسان. We are very happy you are here. You are welcome here. شاید اردو ہے, سمجھ تو نہیں آئے گی, کوشش کروں گا اگر کوئی انگلش کا لفظ بول دوں. پریکٹس تو نہیں ہے. یہ لکھا ہے کہ لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا, بھیڑ بکریاں گائے بیل ڈیرے تھے, اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, کہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی ایسا ہی ہوتا ہے, گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی, کہ کوئی ایسا پرابلم ہو تو انسان کہتا ہے کہ اچھا ہے اگر ہم علیحدہ ہو جائیں تو. مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوط تھا یہ ابراہیم کے ساتھ آیا تھا, اور ابراہیم جو تھا اس کے اوپر خدا کی حضوری تھی, وہ نور میں تھا, وہ قدرت میں تھا. اور جب یہ وہاں آئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہی اس کو اتنی دولت ملی, اتنی مال ملا, جو کچھ بھی تھا اس کی وجہ سے ملا تھا, کیونکہ خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ تو یہ ڈیسیژن کر, کہ تو چھوڑ دے اس کو. مگر یہ جب یہ ایسی بات ہوئی, حالانکہ اتنی بات نہیں تھی, وہ کہہ سکتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے, نوکروں کا جھگڑا ہوا ہے تو ہم بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں. مگر اس نے محسوس نہیں کیا کہ وہاں خدا کی حضوری ہے, اور وہ اس نے دنیاوی چیز کو دیکھا. حالانکہ ابراہیم بھی وہاں تھا, اور وہ اس ملک جہاں وہ آئے تھے, خدا نے اس کو کہا کہ یہ ملک میں تیری اولاد کو دوں گا, تجھے نہیں دوں گا, کیونکہ وہ پھرتے رہے. مگر لوط نے اپنا دل بڑھا لیا. تو میں تھوڑی دیر کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے چنا بھی کیا, سدوم اور عمورہ کو, جہاں کے بعد میں وہ سارا برباد ہو گئی ہر چیز. وہاں ایک ڈیڈ سی بن گیا. تو اس نے جو چنا اس جگہ کو, تو میں نے تالمود میں پڑھا تھا یہ سدوم اور عمورہ کے, کہ یہ بہت برے لوگ تھے,
अमीर बहुत थे, क्योंकि वहाँ इतने बगात थे और वहाँ इतनी वो उनको याशी की जगह थी और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मगर क्योंकि बड़े अंगूर होते थे, शराब बड़ी पीते थे, और एक महीने में एक पूरा दिन जो होता था वो ड्रिंक करते और अलामियाँ बदी करते, बुराई करते। वो इस बात से उनको कोई शर्म नहीं थी। और अगर कोई बूढ़ा भटका कोई मुसाफिर आ जाता उनके वहाँ सदूम में, तो इतने वो उसके साथ इतना बुरा सलूक करते कि अगर कोई ऐसा, वो तो बदी करना चाहते थे, मगर फिर भी उनका जो सामान होता था, जो उनकी चीज़ें होती थी, वो धोखे से ले लेते थे। अगर वो बेचारा कोई काजी के पास जाता था, किसी जज के, तो वो भी जो उधर रहते थे उनकी साइड लेनी है, उसको कहना नहीं तू गलत है। इसलिए खुदा को ये गल बड़ी नापसंद थी। एक तो वो बेइंसाफ थे, ज़िनाकार थे और शराबी, मतलब उनके हर किस्म की बुराई दिखाई बीच में कि उनमें पाई जाती थी। ऐसे क्यों था? ये जो देखो, जब नूह बाहर आया उसके 3 बेटे थे, और सिम, हाम और यार। ये जो कौम थी ये हम में से थी, और खुदा ने और नूह ने इसको लानत की थी इसके ऊपर कि तू अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम भी बनेगा। देखो खुदावंद जो है वो अपने बंदों की बातों को कैसे याद रखता है। और ये जो कर्ज था इस सारे इलाके के ऊपर, यहाँ 5 थे अपना ये बादशाह जो थे, मुख्तलिफ जो थे नज़दीक पहले ऐसे बादशाह होते थे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इसके वाक़या जो था, इसकी 2 दफ़ा इसके ऊपर तकलीफ़ आई थी। पहली दफ़ा जब तकलीफ़ आई है उस वक्त जब के 5 बादशाहों ने अटैक किया, उनमें एक अलाम बादशाह था। ये जो ईरान का पहला जो नाम है ना, ये ईराम था, और ये सिम की औलाद में से था। और बाद में इसी ईरान का जो नाम था वो फारस हो गया। 1935 में रज़ा शाह पहलवी ने इसका नाम ईरान रखा था। पहले इसका नाम इलाम था, फिर पारस, मादी भी हो गया था। और ये जो लोग हैं, ये उस वक्त भी बड़ी एक पावर थी, ईरान जो था। और ये इलाम जो बादशाह, कदर उसका नाम था, वो उनका वो लीडर था। उसने दूसरे बादशाहों को साथ मिला के 5 बादशाहों ने आके 5 के ऊपर ही उन्होंने ना अटैक कर दिया, उन्होंने शिकस्त दे दी। वो तो होनी थी, क्योंकि खुदा भी चाहता था कि ये बहुत बुरे लोग हैं। ठीक है, वो भी इतने अच्छे तो नहीं होंगे, मगर हो सकता है इनसे ज़रा थोड़े अच्छे हो, क्योंकि खुदामंद जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता। वो देखता रहता है कि ये लोग आज बाद आ जाएं, आज बाद आ जाए, मगर जो अगर हम नहीं आते, मैं हूँ, आप, कोई भी होगा, अगर हम अपनी डगर पे जा रहे हैं और हम गुनाह को पीते हैं और बुरी बात को बुरी बात समझते ही नहीं है, तो फिर खुदावंद जो है वो नसीहत है। तो इनको उन्होंने आए और उन्होंने इनको फतह कर लिया, क्योंकि ये 12 साल ये ईरान का जो ये बादशाह था ना, उसके अंदर ये 12 साल रहे थे सदूम और मूरा, और 13वें साल इन्होंने बगावत किया, उन्होंने चढ़ाई कर दी। जब बीच में से उसकी सारी फैमिली को ले गए और भी औरतों को ले गए, अनाज, पहले ज़माने में यही होता था कि अनाज को ले जाते थे, क्योंकि अगर हम पढ़े इसराइल के मुताबिक भी, तो वहाँ जब भी वो आते थे मदियानी और दूसरे लोग, तो वो जो उनका खाना ही ले जाते थे, गंदम जो चीज़ होती थी खाने की, वो यही दौलत थी उनकी, तो वो इनका सारा कुछ ले गए। और जब उसको पता लगा, इब्राहिम को, बीच में एक आदमी गया, उसने 360 लोग लिए अपने
खानादार लोग जो थे उसने अटैक कर दिया। खुदा वो जंग जो थी वो खुदा लड़ रहा था और उसने 5 बादशाहों को शिकस्त दी। जब जंग हमारी खुदावंद लड़ता है तो फिर फतह ही फतह। उसने फतह ली और इनको छिड़ा लिया, फिर इनको वापस ला आ गया, मगर फिर भी शायद ये इसको अकल आ जाती, छोड़ देता वो जगह। मगर बाद में जब हम देखते हैं कि जब खुदावंद ये बात नहीं आए, ये लोग जैसे कि मैं आपने पहले भी मैंने बताया कि ये बहुत बुरे लोग थे, इनमें एक बुराई नहीं थी, इनमें बहुत सी बुराइयाँ थी, इसीलिए खुदा ने इनको बर्बाद कर दिया। और जब खुदा आया और इब्राहिम को पहले मिले तो इब्राहिम ने फिर कोशिश की कि शायद ये बच जाए। मैं और पास बात कर रहे थे हम, वो 50 से शुरू हुआ और 10 तक गया। क्योंकि वहाँ 5 बादशाह थे ना, तो वो सारे बुरे थे, तो उनको 10 भी नहीं वहाँ मिले। मतलब 5 के ऊपर 2 आता है ना, वो लोग नहीं अच्छे नहीं लोग थे। और वहाँ हम देखते हैं कि जब फरिश्ता आया और उसने खुदावंद वहीं ठहर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो पाकरू मसीह और खुदा बाप थे, तीन, मगर हम नहीं कह सकते। मगर ये कि खुदा उधर ही ठहर गया और उसने बताया इब्राहिम को कि देखो हम उसको बर्बाद कर देना। तो उसने इब्राहिम से एक बात कही, उसने कही तू मेरा बंदा है और मुझे पता है कि तू अपने बच्चों को मेरे मुतल्लिक़ बताएगा, तू अपने बच्चों की निगरानी करेगा, उनको गाइड करेगा। क्योंकि खुदावंद को हमारे बच्चों की भी बड़ी फिक्र है कि माँ बाप जो है वो बच्चे को गाइड करें। मगर अगर बच्चे ही माँ बाप को गाइड करना शुरू कर देंगे तो फिर बड़ी गड़बड़, ठीक नहीं है। और खुदा ने उनसे बात की इब्राहिम से कि मेरा ईमान है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम जो था वाकई उसने इसहाक को ट्रेन किया हुआ था। जब वो उसको लेने के गया, ये डिसीजन था अपना इब्राहिम का भी। जब खुदा ने कहा, उसने कहा ठीक है मैं इसकी कुर्बानी दूंगा। उससे पहले उसने झूठ भी कहीं बोले। जब वो मिस्र में गया अपनी बीवी को कहता है कि ये मेरी बहन है, गलतियाँ हुई उससे, मगर ये है कि फिर भी खुदावंद चाहता हर वक्त, खुदावंद छोड़ता नहीं है। अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं, इब्राहिम ने माफ़ी मांगी, इब्राहिम फिर भी खुदा के साथ चलते रहा। और उसके बाद ये हुआ कि वो चले गए और वो जब वहाँ गए तो आपने पढ़ा ही होगा, सबने अभी भी यहाँ भी लिखा है कि जो लोग थे वहाँ के वो इतने बुरे लोग थे, वो फरिश्तों को कहते हमने इनके साथ बदी करनी। देखो इतनी बुरी बात, उन्होंने उनको अंधा, चूँकि उसके बच्चे जो थे वो बड़े बुरे माहौल में थे, क्योंकि वो बड़ा बुरा माहौल था। आज भी दुनिया का, यूरोप का, कुछ भी है, ये बहुत बुरा माहौल है। दुनिया जो है ना वो बड़ी गुनाह में इतनी डेड हो चुकी है कि उनको होश ही नहीं है, वो अपनी मर्जी करते हैं। और वहाँ भी ऐसे ही था कि उनके जो बच्चे थे वो भी, जब उन्होंने फरिश्तों ने कहा कि भाई निकल जाओ इसने बर्बाद होना, तो वो मजाक करने लगे, दामाद भी मजाक करने लगे, लड़कियाँ भी, वो 2 लड़कियाँ थी वो चली गई साथ। मगर उनके ऊपर भी जब वो निकल गई तो उसकी बीवी को उसने कहा कि तू पीछे नहीं मुड़ के देख। उसने देखा, वो आपने पढ़ा कि वो नमून का खंबा बन गई, वो मर गई, उधर ही मर गई। मगर ये लेके अपनी बेटियों को चला गया। वो ये गार में रहते थे, और जो आगे जो अक्षर हुआ वो अच्छी बात नहीं है कि बेटियों ने कैसे, क्योंकि वो गुनाह को गुनाह समझती नहीं, क्योंकि उनका माहौल ही ऐसा था, सदूम और मूला का। उन्होंने अपने बाप को शराब पिला के उसके साथ बदी की कि हम औलाद जो है वो रखें। और आपको पता है कि वो जो मुआब और जो मूनी थे, खुदावंद को नफरत करता था। खुदावंद चाहते नहीं था कि ये मेरे लोगों में ये लोग आए। मगर ये है कि वो ठीक है, खुदावंद की जो अपना डिसीजन होता है, खुदावंद अपना डिसीजन लेता है और हम अपना डिसीजन लेते हैं। वो अच्छा नहीं हुआ था।
مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے اس کے بعد خداوند نے اپنا ایک ڈیسیژن لیا کہ اس نے 3 فرشتے بنائے، لوسیفر، جبرائیل اور میکائیل۔ مگر چونکہ لوسیفر جو تھا وہ پرستش کرواتا تھا اور اس نے بھی بغاوت کر دی، اس نے بھی ڈیسیژن لیا، اس نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میں بھی خدا کا جو اپنا تخت جو ہے خدا سے بھی اوپر رہا ہوں، خدا کا کون مقابلہ کر سکتا؟ اور لکھا ہے کہ خدا نے اس کو گرا دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے بھی اپنا ڈیسیژن لیا، اس نے جب آدم نے حالانکہ خدا نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، خدا ہمیشہ پہلے نصیحت کرتا ہے، پہلے جان نبیوں کے ذریعے، پہلے خدا نے ڈائریکٹ بھی بات کرتا تھا، ابھی بھی خدا نے ہمیں ایسا دل دیا ہے کہ خدا کو پتہ ہے، اس نے ہمیں بنایا یہ اس طریقے سے، اس طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے جو ہمارا ضمیر ہے وہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، چاہے کوئی انسان خدا میں ہے یا نہیں، مگر اس کا جو ضمیر ہے پھر بھی وہ کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ غلط ہے، مگر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے، مگر پھر بھی ہم وہ کام کرتے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے، ایک دم نہ ہوگا مگر وہ ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب اس نے جھوٹ بولا ابراہیم نے کہ یہ میری بہن ہے، اس کے بیٹے نے بھی یہی بات دہرائی تھی، کیوں نہیں؟ اس نے بھی جب وہ علی یہ نام تھا اس کا جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس نے اس کو کہا کہ یہ میری بہن ہے، تو یہ تو اچھی نہیں، مگر یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی حرکت کرتے ہیں تو وہ ہماری جنریشن میں آ جاتی ہے، وہ آگے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مگر ہم محسوس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ نارمل ہے، مگر نہیں، خداوند جو ہے چاہے وہ سزا ضرور دیتا ہے، چاہے وہ جلدی دے یا لیٹ دے، مگر ہماری جو نسل، جو ہماری جنریشن میں جو کرس ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور آگے آتا ہے۔ تو آدم کو بھی خدا نے کہا کہ دیکھ بھائی تو سارے کام کرنے ہیں مگر یہ کام نہیں تو نے کرنا، اس نے وہی کیا، حالانکہ خدا نے اس کو کہا تھا کہ جس دن تو پھل کھائے گا یہ تیرا فیصلہ ہے، جس دن تو ڈیسیژن یہ کرے گا اور تو کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو میرے بچوں، آدم تھا یہ اسی وقت ہی اخلاقی طور پہ اور روحانی طور پہ ایک دم وہ مر گیا تھا، اس کے بعد ہی پھر اس کا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی، کیونکہ اس میں غرور آیا، جیسے کہ جبرائیل میں اس میں شیطان میں غرور تھا، اس نے غرور کو استعمال کیا اور اس نے اس کو اسی طرف لگا دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو گناہ ہے یہ غرور کی جڑ ہے، اور خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو انہوں نے بھی اپنا ڈیسیژن دیا، انہوں نے اپنی جان دی، قربانی دی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا یہی ایک ایم تھا، صلیب کے اوپر مر گئے، کفارہ دیا، اور ان کا ایم یہی تھا کہ وہ دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ وہ انسان کی گراوٹ، جو انسان گر چکا تھا، اس کو پھر وہی سٹیج پہ لانا چاہتے تھے۔ وہ خداوند یسوع چاہتا تھا کہ ایک دفعہ پھر ہم باغ عدن میں پہنچیں، اسی حالت میں جائیں جس حالت میں کہ خداوند صبح آتا تھا، آواز دیتا تھا، چہل قدمی کرتا تھا، اور دیکھو وہ بھی آگے ملتے تھے، آدم اور حوا ملاقات ہوتی تھی، پر جب انہوں نے گناہ کیا تو کیا ہوا؟ وہ چھپنا شروع ہوا۔ گناہ جو ہے بچوں یہ انسان کو ننگا کر دیتا، اور گناہ سے خداوند کو نفرت ہے، اس لیے مسیح دنیا میں آیا، اس نے صلیب پر اپنی جان، میں ان کو کہہ رہا تھا کہ صلیب کی جو ہے یہ بہت بڑی ویلیو ہے،
खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान दी, और पौलुस रसूल भी कहता है कि खुदा ना करे मैं किसी बात पे नाज करूं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की। क्योंकि जब हम अपने आप को मसलूब करते हैं तो हम मर जाते हैं। और ये ठीक है, हम जब इंसान जो होता है, जब ईमान से इंसान खुदा के साथ चलता है तो जो पाक रूह है वो हमारी मदद करता है कि हमने कैसे मसलूब होना है, हमने कैसे मरना है, हमने मरना जरूर है। पाक रूह यही भी कहता है। मगर अगर हम दो किश्तियों में रहेंगे, ठीक है, अगर हम संडे को सिर्फ उस वक्त हम बड़े ठीक है, मगर खुदा ये देखता है कि पूरा वीक हमने क्या किया है। खुदावंद यही चाहता है कि हम पूरे टाइम उसके साथ चलें, रात दिन चलें, और खुदावंद जो है उसकी यही मर्जी है ताकि हम तौबा करें। और मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया था, अच्छी बात है कि जिन लोगों ने तौबा की हुई है खुदावंद उनको बरकत दे, क्योंकि इंजाम यही है। हमारा मेल बगैर तौबा के बपतिस्मे नया खुदावंद से नहीं हो सकता। और आप लोग, अच्छी बात है अगर आप इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पहली कलीसिया जो थी वो मेल जो रखते थे, खुदावंद के नाम में इकट्ठे होते रहते थे। और यही जो है ये बरकत है, और इसी बरकत में हम जो है तरक्की कर सकते हैं अगर हम अपनी पहली हमारी जो सबसे पहली जो फर्स्ट जो कलीसिया वो हमारी ख़ानदान है। अगर हमारा ख़ानदान जो है, अगर हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं तो कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। अगर वो करेगा भी तो खुदावंद जो है उसको पूरा कर देगा। और अगर जैसे कि इसने दौलत की खातिर चला गया लूत उधर, तो ठीक है, दौलत इसको मिल गई थी, मगर जो नुकसान हो गया, बर्बाद, हर चीज़ ही बर्बाद हो गई, सारी फैमिली बर्बाद हो गई। क्या फ़ायदा? और कलाम भी यही कहता है कि अगर हम दुनिया की हर चीज़ में और अपनी जान का ही नुकसान पाएँ तो हमें क्या फ़ायदा होगा। रूत की ज़िंदगी लो, रूत जो थी वो जब उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी ज़िंदगी, वो रूत जो थी नोमी के, उसको कहती है, नोमी उसको कहती है कि जा तू अपने लोगों में चली जा। उसने कहा नहीं, मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। बूढ़ी औरत थी, उसको पता था कि इससे मुझे क्या मिलना है, वो उसके साथ आ गई। और बच्चों, उसने एक कुर्बानी दी, और वो जब दिन सुबह हुई तो उसने कहा कि वो पता से उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो गंदम का मौसम था। वो कहने लगी कि मैं जाती हूँ तो सिट्टे वगैरह, अभी तो पता नहीं, मुझे याद है कि गांव में हमारे बहुत लोग सिट्टे उठाते होते थे ना, और फिर आकर उनको कूटना, और जो गंदम होती थी फिर उनको पीस भी लेते थे। वो गई कि मैं अपना और अपनी सास का जो है पेट पाल लूँ। तो हम देखते हैं कि वो जो उधर गई है, मगर जो बोझ जो था वो बड़ा एक नेक आदमी था। उसने अपने नौकरों को कह दिया कि ना, उसने देखा कि ये तो अच्छी खूबसूरत लड़की है और ये खुदापरस्त है। उसने उनको कहा कि नहीं, इसको जहाँ भी जाती है इसको कोई तंग ना करे, और इसको पानी भी पीने देना, क्योंकि जो यहूदी थे वो गैर कौम के साथ वो पानी भी नहीं पीते थे। अभी भी मुसलमान ऐसे ही करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब वो गई, उसने कुर्बानी दी, और उसका नाम जो है वो मसीह की नस्ल में आ गया, उस लड़ी में परोई गई। और उसके बाद जिस खेत में वो पहले दिन जाके सिट्टे वो चुन रही थी, देखो कितनी बड़ी बात है, वो उस खेत की मालक बन गई। वो बाद में मालक थी, और ये खुदा की बात है। दाऊद जब जाति जुलिये से लड़ने क्यों गया था, उसने ये डिसीजन लिया था, उसका भी ये डिसीजन था। और उसने देखो, पत्थर से नहीं मार सकता कोई, उसको खुदा ने मारा था। खुदा की हजूरी उसको जो थी उसने मार दिया था। ऐसे ही अगर हम देखें दानियल को, जब उनको शेरों की मान में फेंक दिया तो फरिश्ते आए, उन्होंने उसका मुंह ही बंद कर दिया शेरों का। वो क्या कर सकता था? कलाम यही कहता है, कल में ज़बूर में लिखा है कि फरिश्ते तेरी हिफाजत करें।
तो मेरे अजीजों, हमें भी जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे अपनी फैमिली में या कलीसिया में कुछ भी आए, उसका असर होता है। अगर बुरा डिसीजन लेंगे तो बुराई होगी, अगर अच्छा डिसीजन लेंगे अच्छा ही होगा। खुदा और ये जो खुदा ने हमें पाक रूह जो दिया है, यही हमारी मदद करता है, और पाक रूह जो होता है वो ही गाइड करता है, क्योंकि ये खुदा का वादा था कि तुम पाक रूह पाओगे। और अभी भी जो लोग खुदा के रूह से चलते हैं, खुदा उनको सब्र देता है, तहम्मुल देता है, उनको गुनाह से बचने की ताकत देता है। नहीं तो हम इस दुनियावी दुनिया से बच नहीं सकते। खुदा करे हम सबको खुदा ये बरकत दे के हम बच जाएं, गुनाह से बच जाएं। आमीन।